Thank you so much, Prerna, for giving me a best introduction. Good morning, friends. First of all, I want to see all the students' face. Can I see? Uh, Students, those who are able to on their Open video their mode videos, yeah. can do that for 5 minutes. Not for the 5 minutes because I want to do a interaction section, not only the lecture. Yeah, so ma'am, they will try to do. Students, can you on your videos? Students, can you on your video mode? Actually, ma'am, the thing is that they are most of them they are going with mobile data and they are having lectures also. So those students, if it is possible, they'll be doing the video mode on. Yeah. Thank you, all the friends. Good morning, all friends. This is not the lecture. I know the lecture is always very boring. When I think about the lecture, it's only give me a sleeping mode. So, ये जो हमारा lecture है, वो balancing and enhancing human health. Since last 2 years, हम सिर्फ और सिर्फ यही सुन रहे हैं कि health, health, health. तो कैन यू एक्सप्लेन मी आप में से कोई भी एक जना की व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू यू? आपको क्या लगता है हेल्थ क्या है? कोई भी बोल सकता है प्लीज? प्रेरणा, कैन यू Yeah. एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? Yeah, students, I would like you to participate actively in this session. It's an interactive session, so you can speak out. Obviously, ma'am is asking something. What is health according to you all? Uh, I think, ma'am, they'll take some time to get familiar with you. I think ओके after the ओके session, they will ओके interact. ओके ओके, देयर इज नो इश्यू. लास्ट 2 इयर्स से हम लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए. अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना से हम वो आउटकम कर सकते हैं. मेरे हिसाब से आपको मेरी स्लाइड दिख रही है क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am, it's visible. ओके. तो सबसे पहले मिनट, वेट. सॉरी, स्लाइड आगे शेयर नहीं हो पा रही है. Ma'am, I'll do one thing. I'll share the slide. Yeah, please. You Let can me just use. stop sharing. You Yeah, can yeah, just stop sharing. Yeah, yeah, I'll just sure. share it. Yeah, please. In the share menu itself, it would be stop sharing. It is given. Okay. Okay, step. Uh, Prerna ji. Ma'am, it's not done. Just a sec. Ma'am, you have to do stop sharing. Just go in the share tab and And then cancel. Can I cancel the sharing? yes, yes, you have to cancel the sharing. Okay. Okay. No, it's still sharing only. Okay. And Yeah, now it's done. okay. Thank you. Sorry, students. Yeah, I think slide is visible. Yeah, slide is visible. Yeah, Can you so change the slide, yeah, please? next slide Yeah. is done. Health is a wealth. Uh, आई थिंक सबसे बड़ा मोटिव वेल्थ होता है कि हम पढ़ते क्यों हैं. तो हमारे 2-3 मोटिव्स होते हैं कि अच्छा कमाएंगे, फिर पैसे से हम ऐश करेंगे. मगर अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है और अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो पैसे इट्स नॉट वर्थ एट ऑल. तो अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह हो सकता है, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वेल्थ इज नॉट यूजेबल. दूसरा, अगर हम स्टूडेंट्स हैं
तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो ही हम अच्छा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, इसलिए हेल्थ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रेरणा जी, हाँ। हेल्थ इज अ वेल्थ। Health, according to the World Health Organization (WHO), is a state of complete physical, mentally, and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. इसका मतलब ये है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई बीमारी है। बीमारी का मतलब है कि मेरे को डायबिटीज है, मेरे को हाइपरटेंशन है, मेरे को वो ही एक हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब है कि फिजिकली, मेंटली और सोशली हम कितना स्टेबल है। दैट्स मीनिंग एक्चुअली हेल्थ इज, आपको कोई डिजीज नहीं है इसलिए मैं हेल्दी हूँ, इट इज नॉट द राइट वर्ड टू टेल। अभी इसमें आगे ऐसा है। नेक्स्ट प्रेरणा जी। Yes, ma'am. नेक्स्ट प्लीज। Yeah. या इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ किसको कहेंगे हम? जो हम दिख रहे हैं। एक्चुअल में मैं 100 किलो की दिख रही हूँ, कोई 50 किलो का दिख रहा है, कोई 80 किलो का दिख रहा है। दैट इज अ फिजिकल हेल्थ। अब ये फिजिकल हेल्थ को हम कैसे परफेक्ट कर पाएंगे? तो फिजिकल हेल्थ ठीक रखने के लिए हमें रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एरोबिक्स करेंगे। फिजिकल हेल्थ को हम जितना भी अच्छा रख पाएंगे, उससे हमारा आउटलुक बहुत अच्छा लगेगा। यानी आज मैं सुंदर दिख रही हूँ, हमारा प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहीं पे भी, आज हम स्टूडेंट है और अगर हम क्लास में एंटर होते हैं तो हमारी फिजिक्स अच्छी होती है तो इट इज अट्रैक्शन, यू नो। और फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी होती है तो हमारा आलस कम आता है, हम पढ़ने में कंसंट्रेशन कर पाते हैं। अगर हमारे पास ओवरवेट है तो नींद ज्यादा आती है, आलस आता है, हम प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, हमारा सोच जो सोचता है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आप आपका BMI 25 से नीचे है तो यू आर अ फिट पर्सन। और ये फिट रखने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? आज अपने को कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज वो करना है, कहीं पे भी पार्टिसिपेट करना है, कोई भी आपके वहाँ कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या कहीं रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम फिट है तो वी कैन पार्टिसिपेट ईच एंड एवरी मोमेंट्स इन द कॉलेज फंक्शंस। द सेकंड थिंग, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या है? सोशल हेल्थ यानी हम जो आज लास्ट 2 ईयर से आपने देखा होगा कि आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाए, आपके सोशल सर्कल में नहीं मिल पाए, तो मेंटली हम काफी डिस्टर्ब हो गए। तो सोशल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम फ्रेंड से मिलते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, हमारे बहुत अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसके कारण हम ओवरऑल खुश रहते हैं। हमारा सबसे मोटा मोटिव होता है खुश रहना। तो खुश रहने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो सोशल, हम सब फ्रेंड से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, कजिन से मिलते हैं, हम मस्ती मजाक करते हैं, एक्चुअल एक्टिविटीज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम करते हैं, और we become happy. So it is a social health. Social health is also very important, जो हमें खुश रह सकता है। The third one is a spiritual health. Spiritual health क्या होता है? जो spiritual, it means आज हम meditations करते हैं। सिर्फ दिखने से सुंदर होना बहुत जरूरी नहीं है। आज हमारा दिमाग, जो मन, हम मन से मजबूत होना, स्पिरिचुअल इट मीन्स मन। जो मन अगर स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें मेंटली भी, हमें स्पिरिचुअली कैसे भी भगवान में विश्वास करना, मंदिर जाना, पूजा करना, प्लस मेडिटेशंस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितना भी श्रद्धा, आज हमारा बर्थ कैसे हुआ, तो God is very important. That is, a spiritual health is also very equally important for overall health. And the fourth one is a health, mental health. Mental health क्या है? वो दिखता नहीं है। आज तो आप 100 किलो के हो तो वो दिखता है, मगर दिमाग से आप कोई पागल आदमी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पागल है। बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है वो दिखती नहीं है, इट इज नॉट विजिबल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दिमाग से थोड़ा सा भी डिप्रेस हो या आपका मन नहीं लग रहा है
तो आप कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, आप अपनी पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, किसी से मिलोगे तो भी यू आर नॉट बिकम हैप्पी। इसलिए मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज नॉट विजिबल, इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। आज अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को बोलोगे कि आज मेरे को मजा नहीं आ रहा, तो कि यार तू हट्टी कट्टी तो दिख रही है, तेरे को कहाँ कोई प्रॉब्लम है। मगर मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फोकस करना चाहिए। मेंटल हेल्थ स्टेबल रखने के लिए हमें कांस्टेंट पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरमेंट्स में रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना चाहिए, और जितना हम सोचते हैं वही हमारी मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट होता है। तो हमारी सोच पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, हर मोमेंट पे रहना चाहिए। हम अभी एग्जाम्पल, अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, अभी कितने बच्चे हैं कि वो मोबाइल में कुछ गेम देख रहे होंगे, कुछ होंगे कि वो टीवी देख रहे हैं, कुछ है कि ठीक है यार लेक्चर चल रहा है ना, इट्स ओके। तो दे आर नॉट हियर, वो है हमारे साथ मगर हमारे साथ नहीं है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो एक्टिविटी को 100% दीजिए। दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स लाइफ में तो मेंटल हेल्थ का इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पढ़ने बैठे हो और अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हो तो उसका 100% रिजल्ट आता है। नेक्स्ट प्रेरणा जी, फिजिकल हेल्थ। मैंने आपको जैसे बताया फिजिकल हेल्थ इज योर बॉडी, वो बॉडी को अपन कैसे बेस्ड रखेंगे, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे फॉर्म है, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, दैट ऑल फिजिकल एक्सरसाइज जो हमें फिजिकली हेल्दी रखता है। डिटॉक्सिफाइड यानी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन हमारे यूरिन के थ्रू जाते हैं, हमारे स्वेट्स के साथ जाते हैं, तो हमें बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना चाहिए। डिटॉक्सिफाइड करने के लिए हमें मिनिमम 3 to 5 लीटर्स वाटर इंटेक मिनिमम करना चाहिए, जिससे बॉडी में से टॉक्सिन रिलीज होते हैं और वी बिकम फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं। न्यूट्रिशन डाइट एंड विटामिन। न्यूट्रिशन डाइट, ईच एंड एवरी पर्सन नो के हमने कोरोना में सिर्फ और सिर्फ डाइट, विटामिन और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में ही सुना है। आई थिंक न्यूट्रिशन डाइट इट इज अ बैलेंस डाइट। आप सुबह उठ के रात तक क्या खाते हो, उसके अंदर कितना पोर्शन विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम्स, वो इक्वल मात्रा में जाना चाहिए। इट्स कॉल्ड अ न्यूट्रिशन कंप्लीट डाइट। हमारे पोर्शंस ऐसे होने चाहिए, हमें कभी भी ऐसा डाइट नहीं करना है कि जिसके अंदर हम एकदम क्रैश डाइट कर रहे हैं, आज हमने ये खाना बंद कर दिया, ये खाना। आई थिंक हम हमारे रूटीन में जो भी खाना खाते हैं उसमें से पोर्शंस कटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द न्यूट्रिशियस डाइट। हमारे पोर्शन में सुबह उठ के रात को सोने तक का एक फिक्स डाइट होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जो हम लाइफ टाइम फॉलो कर पाए। आजकल क्या होता है, क्रैश डाइट चालू हो गया है। एग्जाम्पल है कि आज आप पिज्जा रोज खाते हो और आपको किसी ने बोला कि यार तू बहुत मोटी हो गई, यू जस्ट स्टार्ट डाइट, तो पिज्जा बंद कर दोगे, आप कितने दिन बंद कर पाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। यू जस्ट कट द पोर्शन। आई थिंक सुबह उठने के बाद अपने को नट्स लेने चाहिए, नट्स के अंदर आलमंड्स लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। उसके बाद हमें फ्रूट्स लेना चाहिए, फ्रूट्स मॉर्निंग में लेने से एम्प्टी स्टमक में उसका 100% यूज होता है और बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह हो सकता है। उसके बाद हमें कंप्लीट लंच लेना चाहिए। लंच लेने के टाइम पे हमें 100% ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स प्रोटीन्स के लिए दाल होनी चाहिए, हमारा सलाड्स होना चाहिए, 1 चपाती होनी चाहिए, और कर्ड कर्ड के अंदर भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो वो हमें लंच में लेना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को इवनिंग में अगर हमें चाय की हैबिट है तो चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा स्नैक्स लेना चाहिए। आफ्टर दैट इवनिंग में हमें लाइट डाइट लेना चाहिए, जिसके अंदर दलिया है, वेजिटेबल दलिया है, उपमा है, या फिर ओट्स की खिचड़ी है। इस तरह का डाइट हमें नाइट में लेना चाहिए। इट इज अ कंप्लीट डाइट जिसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन आ जाए।
उसके बाद है मूवमेंट्स थेरापी। हमें मूवमेंट्स थेरापी, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपका 1 घंटे का लेक्चर है, मेरा भी 1 घंटे का लेक्चर है, तो हम 1 घंटे एक जगह पे बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है। उसकी जगह हमें हर 15 मिनट में अपने बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए। अपने को हाथ की मूवमेंट्स करनी चाहिए, पैर की मूवमेंट्स करनी चाहिए। हर आधे 1 घंटे में हमें हमारी सीट से खड़ा होना चाहिए। अगर हम लेट रहे हैं तो बैठना चाहिए, अगर हम बैठे हुए हैं तो खड़ा होना चाहिए। 2-3 राउंड्स लेके आना चाहिए। इससे हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म स्टेबल रहता है। रेस्टफुल स्लीपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। भगवान ने हमें 3 पोर्शन दिए हैं, 8 घंटे की स्लीप, 8 घंटे का वर्किंग। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें 8 घंटे का 100% स्टडी करना चाहिए। स्टडी के अंदर 100% हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। 8 घंटे सोना चाहिए और 8 घंटे बाकी की एक्टिविटी। हमें म्यूजिक का शौक है, हमें घूमने का शौक है, हमारे फ्रेंड्स के साथ जाने का है, तो 8 आवर्स फॉर द एंजॉयमेंट, 8 आवर्स फॉर द एजुकेशन एंड 8 आवर्स फॉर द स्लीप। अगर हम इस तरह से करते हैं तो इट इज अ गुड लाइफस्टाइल, जिससे वी बिकम अ हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट प्रेरणा जी। सोशल हेल्थ, मैंने आपको फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया, अब सेकंड इज द सोशल हेल्थ, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 साल में मेरे से भी ज्यादा आप लोग समझ गए होंगे कि सोशल हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंट है। 2 साल से हम किसी से मिले नहीं, हमने कोई पार्टीज नहीं की, कोई फंक्शंस नहीं किए, तो वी फील वेरी लो। हमें लगता है कि यार हम किसके लिए जी रहे हैं। तो सोशल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपको सबको पता होगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आज आपकी फीस, आज स्टूडेंट्स हो, अगर आप फीस नहीं भर पाते तो यू बिकम स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस रहता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है तो हमारा सोशल स्टेटस बढ़ता है, हम प्रॉपरली जी पाते हैं। नेबरहुड एंड फिजिकल एनहांसमेंट, आज अपने बाजू वाला, आज आपका स्टूडेंट है और आपके बाजू वाला जो बंदा है, अगर वो टोटल नेगेटिव डिस्कशन करता रहता है, आपको आपको हर मोमेंट्स पे लो फील करवाता है। आप अगर लिख रहे हो तो कि यार तेरे राइटिंग अच्छे नहीं है, तो नेबरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ। अगर अपना नेबर अच्छा है, अगर वो हमें हर मोमेंट पे एनहांस करता है, हमें अप्रिशिएट करता है, हमें गाइडलाइन देता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो हमारा बहुत अच्छा नेबरहुड होना चाहिए। एजुकेशन, आपको पता है अगर पढ़े हैं, पढ़ पढ़े होंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम सोशली देखने जाए तो आज हम डॉक्टर है, तो कोई भी इंसान कहीं पे भी जाएंगे तो हमें सर ही बुलाएंगे, दे नेवर से विथ अवर नेम। अगर आज आप लॉयर है तो आज आपको अलग इम्पोर्टेंस मिलता है। तो एजुकेशन का हमारा सोशल स्टेटस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको फोकस करके एक बहुत अच्छे मुकाम पे जाना चाहिए। और एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोशल सोशल स्टेटस। द फूड, आपको पता है ये हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, फूड। सब हम क्यों जीते हैं, तो फूड के लिए जीते हैं। तो आज हम कोई भी पार्टी करते हैं तो पार्टी चाहे कितनी भी झकास हो, अगर फूड अच्छा नहीं होता तो कहते हैं यार मजा नहीं आया। तो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोशल हेल्थ। तो वो ग्रेजुअली वो पार्ट को हम अगर हेल्दी फूड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे सोशल हेल्थ पे भी पड़ता है। तो ग्रेजुअली हमें वो फूड की आइटम्स में और हमारे थॉट प्रोसेस में हेल्दी फूड का कंसेप्ट लाना चाहिए। और जितना बने उतना हेल्दी फूड पे फोकस करना चाहिए। कम्युनिटी एंड सोशल कंटेक्स्ट, कम्युनिटी और सोशल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे भी हमारा सोशल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम, दिस इज वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। हेल्थ केयर सिस्टम, अगर हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर है, आज किसी को भी थोड़ी सी बीमारी हुई और अगर डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल है, और आज आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कहते हैं कि यार यू बिकम फ्रेश, आप एकदम फिट हो,
तो 90% हम वहीं ठीक हो जाते हैं। तो अगर हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर है तो भी हमें सोशल हेल्थ बहुत अच्छा मिल जाता है। इसलिए सोशल हेल्थ के लिए इकोनॉमिक स्टेटस, अपना नेबरहुड, एजुकेशन, फूड, communications and healthcare system is very important part. So हमें उस पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट प्रेरणा जी। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज आप उसमें मेरे को वो कर सकते हो। प्रेरणा जी अगर आपको भी कहीं कुछ कहना है, चेतन सर आपको भी कुछ बोलना है तो आप पूछ सकते हो इन बिटवीन प्लीज। हाँ Students, if you have any queries, so you can always write in chat when ma'am is delivering the ऐसा नहीं lecture. हो कि मैं लेक्चर दे रही हूँ आप सब सो रहे हो, क्योंकि लेक्चर ऑलवेज बोरिंग होता है। Yeah. So if you and yeah, and ma'am, I guess they will be having some questions at the end of it. So we'll have question ओके, इट्स answer. अ कंटिन्यूटी। ओके ओके, थैंक यू प्रेरणा जी। और मैं बराबर जा रही हूँ ना, बहुत फास्ट नहीं हूँ ना? नहीं 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 नहीं, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स फीडबैक दे वो सबसे ज्यादा अच्छा है। हाँ मगर आई डोंट गेट एनी फीडबैक सो आई एम स्कैर्ड कि इट इज ओके। Yeah, no, no. They will give you at the end of the session, no doubt, ma'am. गुड गुड गुड। Yeah. ओके, स्पिरिचुअल हेल्थ। ओ यार, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है यार? सोल, ये क्या सोल, एनर्जी, पर्पस, ये सब बहुत अ, ऊपर लेवल की बात है, समझ नहीं आ रही है। आपने सबने सुना होगा कि मेरा मन अच्छा नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन? अवर सोल। होता है कि आज हम अपना जो भी काम करते हैं वो मन से नहीं कहते कि आप जो भी काम करो वो 100% मन से करो। तो इट मीन्स मन, इट इज आवर सोल। अगर हमारा सोल अच्छा है, अगर हमारे सोल की प्रॉपर एनर्जी है, अब सोल की एनर्जी कैसे लाए? तो पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव डिस्कशन से, पॉजिटिव एनवायरमेंट से। अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हमारा लेक्चर चल रहा है और सिर्फ लेक्चर 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 है, तो हम इट इज अ बोरिंग। बोरिंग होगा तो मन नहीं लगेगा, हमारा मन मन बहुत चंचल होता है, वो भटकने लगता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो उसको हमें कंट्रोल में कब, जब हम इंटरेक्टिव सेशन करते हैं तो वो हमारे बस में रहता है। अगर हमारा मन अच्छा है तो एनर्जी ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। एनर्जी क्रिएट होती है तो हमारा पर्पस, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? आज मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, आज आज जैसे आप सब स्टूडेंट्स हो, तो आपके लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए? कैन यू एक्सप्लेन मी पर्पस ऑफ लाइफ? आपके पर्पस क्या होने चाहिए? आई थिंक मैं ही बता देती हूँ। पढ़ाई यानी आपका एजुकेशन। आज जैसे आप बीएससी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, तो आपका अभी का पर्पस फॉर दिस एकेडमिक ईयर, आपका पर्पस है कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस करूं। अभी आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ और क्या करना है। तो सबसे पहले पर्पस क्लियर करके उसको फोकस करके और उसको प्योर एनर्जी देनी है, प्योर कंसंट्रेशन करना है, और अपने मन को मक्कम करके कि हाँ आई कैन मैं कर सकती हूँ और मेरे को करना है। तो पर्पस क्लियर करने के बाद हम उसको सोल के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको 100% परस्यू करके रहेंगे। कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस का मतलब क्या है? आपको पता हो तो बुद्धा ने एक ही चीज कही है कि आप जिस जगह पे हो उसी जगह पे रहो। इट मीन्स कॉन्सियसनेस। आप 100% कॉन्सियस रहिए। अगर अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे हर वर्ड में क्या बोल रही हूँ, मेरी क्या एक्शन हो रही है, इट इज कॉल्ड कॉन्सियसनेस। हम जिस मोमेंट पे, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मेरा 100% ध्यान खाने में ही होना चाहिए, हर एक दाने पे। वो दाना जब मैं चबाती हूँ तो कहाँ जाता है, कैसे आता है, हम जो सोचते हैं वही हमारा वैसा मन। वो हमने बहुत सुना हुआ है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम 100% फोकस इन पढ़ाई में। अगर हम डांस कर रहे हैं तो टोटल फोकस इन डांस। इट इज कॉल्ड कॉन्सियसनेस। हम जो भी काम करते हैं
कॉन्शियस होके करें। अगर हमारा कॉन्शियस 100% होगा तो हमें रिजल्ट भी 100% मिलेगा। अगर हमारा कॉन्शियसनेस नहीं है, अगर मैं अभी लिख रही हूँ और मेरा ध्यान वो पिक्चर में है, तो मैं वो 100% पढ़ाई में भी नहीं आ पाऊंगी, ना मूवी में जा पाऊंगी। तो हम जिस जगह पे है उसी जगह पे रहे, इट्स कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और जितना कॉन्शियसनेस बढ़ेगा उतना हम सक्सेस हो पाएंगे। लाइफ में सक्सेस होने के लिए 100% कॉन्शियसनेस इज नेसेसरी। सो मेरी स्टूडेंट्स को तो रिक्वेस्ट है कि अपने को और ये कॉन्शियसनेस कैसे हम हासिल कर पाएंगे। हमें सब पता है कि कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के लिए हमें मेडिटेशंस करने चाहिए। अगर हम कांस्टेंट मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करने के बैठते हैं तो सब कहते हैं यार मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान इधर भटकता है उधर भटकता है। मगर हम अगर कांस्टेंट एक दिन 2 मिनट, दूसरे दिन 5 मिनट, तीसरे दिन 10 मिनट, हम धीरे धीरे उसको डेवलप कर सकते हैं। और जितना हम मेडिटेशन को डेवलप करेंगे उतना हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता रहेगा। गिविंग बैक, गिविंग बैक क्या होता है? आज हम पैदा हुए हैं, उसके बाद हमें माता पिता ने कुछ दिया है, भाई बहनों ने कुछ दिया है, हमारे फ्रेंड्स ने हमें कुछ दिया है, सोशली आज हमें एनवायरमेंट ने ऑक्सीजन दिया है, फ्रेंड्स ने कुछ दिया है, हमको बहुत कुछ मिला है। अभी हमें भी उनको कुछ देना चाहिए। जैसे कि आज हमें एनवायरमेंट ने ऑक्सीजन दिया है, तो हमें उसको वापस नए झाड़ उगा के वापस उसको ऑक्सीजन क्रिएट करवाना चाहिए। आज हमारे माँ बाप ने हमें एजुकेशन दिया है, हेल्थ दी है, तो हमें उनकी सेवा करके वी गिव देम अ बैक। आज सोसाइटी को हमें वापस देना है। तो अगर हम ये टेंडेंसी रखते हैं, आज आप पढ़े हो, आज अगर आप बीसीए में हो, तो आप अपने से नीचे वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, उनको गाइडलाइन दीजिए। दैट इज ऑल्सो गिविंग बैक। गिविंग जितना हम वापस देते हैं तो उतना सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा बढ़ता जाता है। और जितना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है उतना अपनी हैप्पीनेस बढ़ती रहती है। हमारा लास्ट गोल क्या होता है लाइफ का? इट्स अ हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस हमें लोगों को देने से बढ़ती है, ना कि लेने से। तो हमने लाइफ में बहुत कुछ ले चुके हैं, अब हमारी देने की बारी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अभी तो बहुत छोटे हैं, हम क्या देंगे। आपके नीचे वाले छोटे बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हो, आप नए झाड़ लगा सकते हो, आप किसी बच्चे को कुछ सिखा सकते हो, आप मम्मी को पापा को छोटी छोटी चीजों में हेल्प कर सकते हो। इट इज ऑल्सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी का मीनिंग क्या है? कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ। आज शिल्पा अग्रवाल है, तो क्या है शिल्पा अग्रवाल? उसका बर्थ क्यों हुआ? उसका पर्पस क्या है लाइफ का? वो सिर्फ आई है और एनिमल्स आल्सो जी रहे हैं। मगर अगर हमारा सेल्फ डिस्कवरी नहीं करेंगे तो हम जानवर की तरह जी के चले जाएंगे। उसकी जगह हमारा पर्पस डिसाइड करके हमें सेल्फ डिस्कवरी करना चाहिए कि मेरे को ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मेरे को उसमें फोकस करके वी बिकम अ टॉप। तो वो हमें 100% करना चाहिए। स्टेफी नेक्स्ट, सॉरी प्रेरणा जी नेक्स्ट। मेंटल हेल्थ, ओ माय गॉडनेस, मेंटल हेल्थ मैंने आपको समझाया कि फिजिकल हेल्थ दिखता है, मेंटल हेल्थ दिखता नहीं है। यार ये होता क्या है? हम किसी को भी पागल नहीं कह सकते। पागल कहने के लिए आपको उसका एक्शन दिखना चाहिए। कई अपने को 90% लोग एकदम फिट दिखते हैं, मगर वो मेंटली फिट नहीं होते हैं। वो कैसे पता चलेगा? तो मेंटल हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे गोल, आज हम जो भी प्लान करते हैं, अगर मेंटली हम डिसाइड करते हैं कि दिस इज अवर गोल। आज जैसे प्रेरणा जी है, तो आज उन्होंने सोचा कि मेरे क्लास के 100% रिजल्ट आना चाहिए। उन्होंने गोल क्रिएट किया। वो गोल को अचीव करने के लिए वो टोटली मेंटली सबसे पहले प्रिपेयर होगी। उसके बाद उसके लिए एक्शंस के लिए वो फिजिकली उसका चार्ट बनाएगी, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन करेगी। तो मेंटली जब तक हम स्ट्रॉन्ग गोल क्रिएट नहीं करते तब तक हम फिजिकली कुछ भी नहीं कर पाते। एजुकेशन, अगर एजुकेशन क्या होता है? हम एजुकेट करेंगे। जैसे आज हमने प्रेरणा जी ने गोल क्रिएट कर दिया कि दिस इज माय गोल, मगर उसको एनहांस करने के लिए हमें एक सपोर्टिव सिस्टम चाहिए, उसके लिए हमें एक एडवाइस चाहिए। सेल्फ एस्टीम,
सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि आज जैसे मैंने एक चाय पी ली, बराबर है? मैंने डाइट करने का प्लान किया था और सुबह से प्लान किया था कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगी। कोई कोई रूम में है नहीं और मैंने चाय पी ली। नो वन इज़ सीन मी कि चाय पी है कि नहीं पी। मगर सेल्फ एस्टीम એટલે मेरा कॉन्शियस, मेरा जो अंदर का कॉन्शियस है, वो मेरे को उसको तो पता ही है कि मैंने चाय पी है। तो उसको हमें आंसर देना है, ना कि लोगों को। तो सेल्फ एस्टीम हमें खुद को आंसरेबल होना चाहिए, ना कि सोसाइटी को या लोगों को। तो दैट इज आवर क्लियर गोल कि हम जो कर रहे हैं वो हमें सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस यानी हम जो भी काम करते हैं वो इफेक्टिवनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हुआ है, होता है, चलता है। कम्युनिकेशन, कोई भी काम करने के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे प्रेरणा जी ने ये लेक्चर रखा है, तो उससे पहले उन्होंने मेरे को 15 दिन पहले मेरे टाइम पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरे से रेगुलर कम्युनिकेट किया कि कौन सा टाइम कन्वीनियंट होगा। उसके बाद हमारी स्लाइड बनी, उसके बाद हमारा उन्होंने उनके प्रिंसिपल सर से बात की। पूरा कम्युनिकेशन होता है। जब तक कोई भी सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा, तब तक ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप टीचर से क्वेश्चंस नहीं करोगे या प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर पाओगे? तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू एंड हैबिट्स, वैल्यू एंड हैबिट्स, आज अगर हम किसी की वैल्यू नहीं करेंगे तो इट इज नॉट वॉट और आवर लाइफ। और हैबिट्स, तो जो हैबिट हम क्रिएट करेंगे वही हमारा वर्ल्ड बनने वाला है। एग्जाम्पल, आज मुझे सुबह 5 बजे उठने की हैबिट है, तो इट इज अ गुड हैबिट। जो हैबिट हम क्रिएट करते हैं वो हमारा कैरियर और बिजनेस बनता है। आज हमने हैबिट क्रिएट की है कि आज जैसे मेरे को स्मोकिंग की हैबिट पड़ गई, तो इट इज अ गुड, वो बुरा है, वो मेरी हेल्थ को इफेक्ट करता है, वो मेरी कैरियर को भी इफेक्ट करेगा, वो मेरे बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा, वो मेरी फैमिली लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। तो कोई भी हैबिट बनाने से पहले उसके प्लस और माइनस पॉइंट देख लेने चाहिए और बेस्ड हैबिट्स को क्रिएट करना चाहिए, जिससे हम कैरियर और बिजनेस में उसका अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। प्रेरणा जी, नेक्स्ट। What is stress? Oh my goodness, this is the biggest word I heard since last many years. ये तो आप लोगों को मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्लीज। प्रेरणा जी। Students, please participate. Ma'am is asking you what is stress. So please, आपके क्योंकि लिए stress क्या है आप बता सकते क्योंकि हैं? क्योंकि मेरे से ज्यादा आपको पता होगा कि व्हाट इज स्ट्रेस। Please, if you आज cannot speak, respond in chat. All of you. प्रेरणा जी, आपके लिए स्ट्रेस क्या है? मेरे लिए मैम स्ट्रेस तो मैं जैसे बताऊं, सो मेरा जो बेसिक फुल स्ट्रेस था, सो इट वाज द पीरियड ऑफ मे, जो मैं आपको बता सकती हूँ ड्यूरिंग माय राइटिंग ऑफ थीसिस एंड ऑल. So it was a stress period. Somebody is asking how to relieve stress. तो व्हाट Uh, इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस? yeah, ma'am. One student is telling when you cannot eat pizza for a long time, that's a stress. ये वाला स्ट्रेस तो आपने 2 साल बहुत अच्छी तरह बेयर किया, नहीं? यस और नो? यस। I hope so. Students, Yeah. yes. Uh, yes. Home delivery options for 6 months. It's not home delivery actions. For 6 months, it's a definitely big stress for you. One is telling mental and emotional pressure. That is a stress. Very true. Very true. Dheeraj is And telling. what is the meaning of mental and emotional stress? Chetan is again writing, ma'am, as we cannot cope Stress up with is we routine cannot cope life. up with a routine life. Okay, very true, very true, perfect. स्ट्रेस इट मीन्स आज सुबह आप उठे हो, आपका पूरा शेड्यूल बना हुआ है और वो शेड्यूल में आपने लिखा हुआ है कि 9 बजे शिल्पा मैडम से मिलना है, 11 बजे मेरा एक लेक्चर है, 12 बजे हमें लंच पे जाना है, 2 बजे आज मेरी ये मीटिंग है, 3 o'clock ये है। अभी उसमें प्रेरणा जी का फोन आ गया कि शिल्पा जी मेरे को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना है, प्लीज यू कम टू मीट मी और मेरे को लेके जाइए। This situation is hell for us, it
से कि यार ये तो क्या है, अब मैं कैसे मैनेज करूंगी. इट्स बिकम अ स्ट्रेस. नो, स्ट्रेस इज अ वेरी 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 ह्यूज वर्ड. हर छोटी सिचुएशन, आज हम जब हमारा बर्थ होता है तब से मेरे को लगता है आजकल स्ट्रेस हो जाता है. बच्चे को लगता है यार, हर मदर को लगता है उसका बेटा फर्स्ट आना चाहिए, हर हर मोमेंट पे, हर क्लास में होना चाहिए, हर क्लास में वो फर्स्ट आना चाहिए. उसके कारण वो बच्चे को हर मोमेंट पे स्ट्रेस सिखा देती है. तेरे को 2 बजे जाना है, तेरे को फर्स्ट आना है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है. इट्स क्रिएट अ स्ट्रेस, यू नो. तो बच्चे को लगता है यार पूरे दिन स्ट्रेस 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 स्ट्रेस. हाउ टू रिलीज दिस स्ट्रेस? You know, this is a big, big, big achievement. I'll tell you what is the meaning of stress. Stress, which is not normal conditions, it's not expecting conditions create a stress. I think this is a, according to me, this is a definition of stress. स्ट्रेस को रिलीज कैसे करेंगे? हर मोमेंट पे स्ट्रेस आता है और आने वाला ही है. अगर लाइफ है तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस है तो लाइफ है. अब इसको बैलेंस करना है. हाँ, जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया और वो शेड्यूल से थोड़ा सा भी हटके हो गया तो इट्स क्रिएट अ स्ट्रेस. वो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक्सेप्टेशंस को लाना पड़ेगा. हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा. लाइक वन सेज के मेरे को पिज्जा खाने नहीं मिला तो स्ट्रेस क्रिएट हो गया. तो आई थिंक उसका सॉल्यूशन ऐसा है कि हम घर पे ही पिज्जा बना लेते. बहुत सारी यूट्यूब चैनल से, जहाँ पे यानी स्ट्रेस क्रिएट करने के सॉल्यूशंस भी है. जो भी प्रॉब्लम्स स्ट्रेस क्रिएट करते हैं उसका सॉल्यूशंस. प्रेरणा जी ने बोला कि जब उनका पीएचडी का थीसिस का टाइम था, एट दैट टाइम शी बिकम स्ट्रेसफुल. पर उसमें भी हाउ शी बिकम रिलैक्स. तो उसको जो भी उसका पीएचडी का काम था उसको हार्मोनाइज करना चाहिए. उसके बाद उसको मेडिटेट करना चाहिए. जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर वो हमारे शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो पा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना. सबसे पहले तो एक्सेप्टेशंस, अगर हम एक्सेप्टेशंस लाते हैं तो वो वहां पे ही स्ट्रेस रिलीज हो जाता है कि इट्स ओके, इट्स ओके. अगर ये सिचुएशन आई है तो एक्सेप्ट इट. सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो. एक्सेप्ट करने के बाद उसको उसके ऑप्शंस ढूंढो. जैसे आज आपको आया है कि एकदम से स्टेफी का प्रेरणा जी का फोन आया कि मेरे को मेडिकल हेल्प चाहिए. तो उसके क्या ऑप्शंस है? मेरी ये जो मीटिंग है उसको मैं पोस्टपोन कर पाऊंगी? यस. तो मैं उसको पोस्टपोन करके आई कॉल टू देम एंड रिलैक्स करके मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी. उसके बाद उसके ऑप्शंस ढूंढो कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और उसमें बेस्ड ऑप्शन को हम चूज करेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. दूसरा, एक्सपेक्टेशंस. हम जब बहुत एक्सपेक्ट करते हैं तो भी स्ट्रेस लेवल क्रिएट होता है. आज आपने सोचा 98% मार्क्स आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए. डेफिनेटली हमें ट्राई करना है. हमें उसके लिए 100% मेहनत करना है. हमें उसका इनपुट देना है. हमारा इनपुट 100% होना चाहिए. आउटकम का हमें स्ट्रेस नहीं लेना है. आउटकम इज अ बाय प्रोडक्ट और एनी हार्ड वर्क. तो हार्ड वर्क हम करेंगे तो बाय प्रोडक्ट वो आने वाला ही है. तो हम बिना स्ट्रेस किए भी वो काम इजीली कर सकते हैं. स्ट्रेस लेवल जितना हमारी लाइफ में बढ़ता है उतना ही हमारी वर्क एफिशिएंसी कम होती जाती है. उससे हमारी मेंटल हेल्थ कम होती जाती है. फिजिकल हेल्थ पे उसका बहुत इफेक्ट आता है. जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उतना हम हमारा वर्क एफिशिएंसी जीरो करते जाते हैं. इसलिए रिलैक्स होके मेडिटेट करके हर एक सिचुएशन को स्ट्रेसफुल नहीं क्रिएट करके उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ के और उसको इजीली लेना चाहिए, जिससे हम रिलैक्स रह पाए. प्रेरणा जी नेक्स्ट. What is causing you the most stress right now? Working place? ओ यार, ये बॉस बहुत काम दे देते हैं. ये प्रेरणा टीचर तो इतना होमवर्क देती है कि क्या करे पता ही नहीं चलता है. अदर देन पेरेंटिंग स्ट्रेस. घर पे गया नहीं, तू आज क्लास में गया था कि नहीं, कितने मार्क्स आए, एग्जाम दी कि नहीं, टाइम पे पेपर दिया था कि नहीं, तूने एक्सरसाइज की कि नहीं, तूने खाना खा लिया कि नहीं. पेरेंटल स्ट्रेस. अब पेरेंटल स्ट्रेस तो ऑटोनॉमस है. जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो वो ऑटोनॉमस आ जाने वाला है.
हमें लगता है वो स्ट्रेस है, बट इट इज अ कैरिंग ऑल्सो। अगर हमें कोई पूछेगा ही नहीं कि आपने खाना खाया है कि नहीं, तो वो भी इट इज नॉट गुड। तो हम जिस चीज को स्ट्रेस समझते हैं, कई बार वो स्ट्रेस होता ही नहीं है। इट इज अ नॉर्मल सिचुएशन जो हम उसको स्ट्रेस में क्रिएट कर देते हैं। तो आई थिंक हर एक मोमेंट को पॉजिटिवली लेके अगर हम सोचते हैं, तो वो स्ट्रेस होता ही नहीं है। तो आई थिंक हर एक सिचुएशन को हमें पॉजिटिवली लेना है। रिलेशन बिटवीन बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आज हम उसमें भी स्ट्रेसफुल है। आज मेरी एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बोल दिया, तो लगता है यार ये तो चीटिंग कर रही है मेरे साथ। आज कोई फ्रेंड है, उस Yeah, emotional pressures is very high, particularly with friends. Does it affect health? Very much, very much. अगर हम ये जो प्रेशर है, इमोशनल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, तो वो हमारी हेल्थ पे 100% इफेक्ट करेगा। ये सिचुएशन में हमें फ्रेंड्स को फ्रेंडली बैठ के उसको पूछ लेना चाहिए कि यार क्या चल रहा है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। अगर हम जितना फ्रेंडली बिहेव करेंगे, आई एम सॉरी, अगर हम हमारे फ्रेंड्स के साथ क्लैरिटी से बात करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कशन है, ना कि स्ट्रेस क्रिएशन है। जब हम सोते, आज कोई फ्रेंड ने बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया, तो हमें लगता है यार देख इससे कितना अच्छा ड्रेस पहन लिया और मैं तो रह गई। जहां मैं रह गई वहां स्ट्रेस क्रिएट हो गया। उससे बोल के कल तू मेरे को दे देना, मैं पहनने वाली हूँ। तो इट्स अ फ्रेंडली वे। तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो हर सिचुएशन को हमें रिलैक्सली हैंडल करना है, ना कि स्ट्रेसफुल। और हर सिचुएशन को हम बहुत इजीली रिलैक्सली हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंजॉयफुल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर मोमेंट्स को एंजॉय करो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रखो। और हैप्पी लाइफ इज अ हेल्दी लाइफ, यू नो। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट गोल इज अ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के ऑप्शंस में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर जो सिचुएशन आपको दुख देती है, वो सिचुएशन को छोड़ दो। उस सिचुएशन का ऑप्शंस हैप्पीनेस में क्रिएट करो। और जितने आप खुश रहोगे, उतने आप हेल्दी रहोगे। जितने आप हेल्दी रहोगे, उतने आप खुश रहोगे। इट्स अ टोटली वाइस वर्सा जैसी सिचुएशन है। हेल्दी, हैप्पी। अगर हम खुश है तो हम हेल्दी है, और अगर हम हेल्दी है तो हम खुश है। तो हमें खुश रहने के लिए हेल्दी रहना है, और हेल्दी रहने के लिए खुश रहना है। जिस जिस सिचुएशन में हम हैं, जैसे आज मेरे को एकदम से गुस्सा आ गया, तो हमें माइंड डाइवर्ट कैसे करना है? 1 2 3 4, हमें हमारा माइंड डाइवर्ट करना है, जिससे हम वो सिचुएशन से ओवरकम हो पाए। और वो बहुत इजीली कर पाएंगे, तो हमारा स्ट्रेसफुल नेस भी कम हो जाएगा। प्रीना जी, नेक्स्ट। फोकस ऑन हेल्थ, HEALTH, ह्यूमन, सोशल सपोर्ट। आपको क्या लगता है? सोशल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल मोटिवेशन, हमें 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 अपने आप को एनहांस करना है, मोटिवेट करना है। अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हम क्या करते हैं कि ये देखो इसने नहीं किया है, मेरे मम्मी ने मेरे को आज खाना नहीं दिया है, मेरे पापा ने पता है मेरे को आज बाइक नहीं दिलाया ना, वरना तो आज मैं ट्यूशन में टाइम पे पहुंच पाता, कॉलेज टाइम पे पहुंच पाता। हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, हम दूसरे पे थोप देते हैं। जैसे जैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चालू कर देंगे, वैसे वैसे हम हैप्पी रहना चालू कर देंगे। हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा हैप्पीनेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। हम दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, इसलिए हम ऑलवेज स्ट्रेसफुल रहते हैं, हम हमेशा दुखी रहते हैं। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, मगर no one is responsible for our happiness. We are only the responsible for our happiness. तो हमें हमारी हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहिए, सोशली एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, एनहांसमेंट करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करनी चाहिए। एविडेंस,
एविडेंस इट मीन्स इट्स अ क्लिनिकल वर्ड, जहाँ पे ये है कि हमें हमारी हेल्थ इलनेस है तो एविडेंस यानी उसका पुरावा, हर चीज का एक एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस इट मीन्स कि उसका मापदंड, उसका क्लैरिफिकेशन, उसका प्रमाण पत्र, और उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सेप्टिंग हर चीज, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, दैट इज, मैं अभी 1 घंटे से यही बोल रही हूँ, हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, फियर को आउटकम करना चाहिए। फेलियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर? आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे सुसाइड्स केस बढ़ रहे हैं। फेलियर लाइफ में, फेल एंड पास इज अ वर्ड, इट इज नथिंग एल्स। आज हम मिलियनर्स है तो हम सक्सेस है, या हम गरीब है तो फेलियर है, इट इज नॉट एट ऑल। फेल एंड सक्सेस इज आवर माइंड गेम, इट्स डिसाइडेड बाय अस ओनली। तो हमें फेलियर और फियर, फियर हमारी लाइफ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज करने के लिए फियर इज नॉट द सॉल्यूशन। हमें हार्ड वर्किंग के साथ 100% अपना दे के कोई भी काम करना चाहिए। पुअर मोटिवेशन नहीं, पॉजिटिव, वो तो मैंने आपको बता दिया। लिसनिंग, हमें सुनने की हैबिट रखनी चाहिए। आजकल वो पेशेंस लेवल, आपने सुना होगा कि न्यू जनरेशन में पेशेंस लेवल है ही नहीं, वो सुन नहीं सकता, बस उसको जो बोला है वही, वो मैं बोला वो होना चाहिए। लिसनिंग पावर इज वेरी लेस। हम जितना सुनेंगे, हम जितना समझेंगे, उतना हम हम्बल होते जाएंगे, इसलिए लिसनिंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टेड, अवॉइडिंग ह्यूमन, आज नेगेटिव इमोशंस को हमें नहीं लाना चाहिए। वो टेस्टेड प्रूवन फैक्ट है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हॉलिस्टिक, हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। आज पूरा हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। यूनिवर्स इज अवर मदरहुड, और हमें उस पर ट्रस्ट करके पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए। मैक्सिमम, आज हम मंदिर क्यों जाते हैं? वहां पे हमें दिखता भी नहीं है, गॉड एक पत्थर है, मगर इट्स अवर बिलीफ सिस्टम, वो हमें मैक्सिमम पावरफुल करनी चाहिए। प्रेरणा जी नेक्स्ट। प्रेरणा जी नेक्स्ट। Just a second. थैंक यू, आप लोगों ने इतने आंसर्स दिए मेरे को, बहुत सारे आपके रिव्यू दिए। चेतन सर, आपको कुछ पूछना है? Yes, ma'am, you can continue. या We need to wind up in 5 minutes. या बस। देन प्रेरणा जी प्लीज आस्क द स्टूडेंट्स, दे हैव एनी क्वेश्चंस, या दे हैव एनी डाउट्स अबाउट माय लेक्चर? Yeah, I think this is the last slide. Fine. Okay. Take a physical health, exercise, running, walking, which I told you, very important. Social health, two-way communications, make new friends, communicate with them very friendly. आपको जो भी मन में है वो पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ भी मन में मत रखिए। बहुत फ्रेंड्स बनाइए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ, रोज मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ, शेयर योर आइडियाज, थॉट्स, इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी। रेगुलर में आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक करना चाहिए, डांस पसंद है तो डांस करना चाहिए, और अपनी मेंटल हेल्थ को 100% परफेक्ट रखना चाहिए। अगर हमारा फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ अगर स्टेबल है तो हम ओवरऑल हेल्दी पर्सन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन। Yeah, students, if anybody wants to ask any question or anybody is having a doubt, they can interact with ma'am. We have some time, 5 minutes. Yeah. So
Don't be nervous. You can interact with her in a very friendly manner. She's very friendly, and she will solve your every doubt very easily. Yeah. Anyone, students? So can I conclude the lecture? Thank you so much, Prerna ji, for inviting me. And it is a nice talking to all the students. Yeah. Yeah. If you want to give any, Chetan is telling session was very much informative. Yeah. Thank you. Yeah. Students are giving applause. Yeah. Students, if you have anything to say to ma'am, you can, write in chat. Yeah. So, okay. So I think ma'am has left, and